So today we welcome Dr. and Professor Divya Tanwar to our show Amazing Mentor. Dr. Divya is Director in Sanskrit University and Chairperson in Divya Foundation. She plays many roles in her day-to-day life, like she is a writer, she is a professor, she is a cyber crime and security expert, she is in social activities, and the list go on so and so. Divya Foundation is into promoting skill development in women and girl children and helping them how to make handicraft items. And also they help them to sell these items in the market. Dr. Divya Tanwar have also been awarded with Surya Gaurav Rashtriya Puraskar 2020 for her contribution in education and social services by Surya Dutt Group of Institutions. So it's a pleasure for me to invite Dr. Divya Tanwar to our show Amazing Mentor. So welcome to our show, Dr. Divya. Namaskar, Gaurav. Thanks a lot for inviting me in this forum, and I'm very, very thankful to you and giving me such a beautiful introduction. बहुत अच्छा लगता है अपने बारे में सुनना कि ओके तुमने यही किया है तो इसलिए thanks a lot, sir. Thank you. So generally, how do you get so much of energy to do so many roles in your life? I'm a happy person by nature. I think this is the best quality. If somebody asks me what is the best quality you have, I'm a happy person by nature. So I enjoy working. If I am not able to find out happiness in something, I will let it. I'm that kind of a person. And because of that, I think there are a lot of things I tried. In a daily basis also, a lot of things I tried, and after that I said, finally I realized, no, this is not good for me, I'm not enjoying, then I finally left. So this is the reason I want to tell you, like, whatever who are the listening, who are the student or who want to become something, whatever you do, just enjoy your work. That is the only thing. Be like love your profession. Otherwise, you cannot be successful. That is the only thing I want to say. So that is the reason I'm happy because I love doing this. What was your childhood dream to become? My childhood dream was like I want to become. There are a lot of things. And when I was growing up, first of all, of course, I want to become a star. I want to become a film star. That is only a model of film star. Then after that, I want to become like astronaut. Then after that, aerostat. There are a lot of professions, a lot of things. But definitely one thing I want to say, I always love interacting with people. And that I realized when I joined this profession, the teaching. I love interacting with the student. My class is filled with fun class. It's a fun class basically. And my subject is very dry. Is basically cyber security or networking or electronics. So my students are always very happy in my class because the way I teach is it was different. It was different, not like okay, I'm teaching something like okay, you have to follow this syllabus. No. The examples are related to day-to-day life. Like cryptography, how you will explain a cryptography to a BBA student. It is very difficult, but the way I taught them, they still say कि okay मैम हम इसको भूल नहीं सकते जिस तरीके से आपने हमें पढ़ाया. So that is a way. I love teaching. तो आपकी कैरियर जर्नी जो है वो कहाँ से चालू हुई? So what was your first profession in life? I joined aviation in after 12th. That was the first thing. What was the like. After 12th, I finally realized what to do, either modeling or something. And I got a BSc Electronic Honors in Delhi University. But I always want to become something very different, not like okay, something boring. So I joined aviation, and after that I joined print media. I joined electronic media also. But the first job was air hostess. That I love. That job was too good. Because there were a lot of exposure. You love interacting with people, and there was, and of course, big salary that time. That was the thing. So what was the reason to shift career again and again? That is the thing I told you, sir, and I think I have written so many times. If you are not love whatever you are doing, just leave it as early as possible.
just leave it as early as possible. If you're finding a job boring, that means you're not enjoying it. So first thing whenever I talking to my student in class, also when I'm giving a counseling, whatever you are doing, just find yourself who you are, who are you actually, what is the thing. If I want to become a professor, I have to be on that thing, I have to be on that pace, I have to be that kind of a patience. If you become a doctor, you have to be that kind of a, you are not like, you can see blood, I cannot see blood. I cannot see blood. If you want to become what is this profession, that advocate, you have to be good in arguments. I cannot argue with people, I find it very very difficult. So that is the only thing, like, know yourself first before joining anything, before jumping into any career. Know yourself, what kind of a person you are. That is it. So you are a soft-hearted person. So don't. I am a crying baby basically. Okay. I can see it. I'm a crying baby. कभी ऐसा होता है कि ड्यू टू दिस सॉफ्ट-हार्टेड पर्सन, जो स्टूडेंट्स हैं आपके, वो टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले लेते हो? नहीं, ऐसा नहीं होता. स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट नाउअडेज. दे नो कि शी इज सेंसिटिव बट शी इज वेरी स्ट्रिक्ट इन अ डिफरेंट मैनर, इन अ वेरी, अगर मैं अपना कॉलेज का एक्सपीरियंस बताऊं, आई ऑलवेज गॉट द नॉटीएस्ट स्टूडेंट इन माय कॉलेज लाइफ, नॉटीएस्ट स्टूडेंट. एंड अगर वो कभी इसको सुनेंगे, उनको रियलाइज होगा कि उनकी इतनी सारी चीजों को मैं छुपाती थी कि नहीं किया होगा इन लोगों ने. एंड आफ्टर सम टाइम दे रियलाइज कि नहीं, इनको तंग करने का फायदा नहीं है. शी इज आवर बिगेस्ट एसेट. उनको नहीं कर सकते था. सबसे नॉटी मोमेंट क्या था स्टूडेंट लाइफ का? बहुत सारे थे. मेरे साथ तो अभी भी होते रहते हैं. बहुत सारे थे. इनमें से क्या बोलो किसी भी नॉटी स्टूडेंट का. There are incidents when you enter in a class, people are used to say ki okay, she is a first of all, I was very very young that time when I joined as a teacher. I was very young. I think the first job was in IGNOU. I was the coordinator of MCA student. The student who are in age also, who are in every aspect they are senior than me, like in age. तो उनको ये समझाना कि आई एम योर टीचर एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट मी इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. सो बट समहाउ आई मैनेज. बट ये होता है क्लास में, जब यंग ब्लड होता है, वो सबसे पहले तुम पे जरूर ट्राई करता है कि हाँ, कहीं ना कहीं तो योगा, शी मस्ट बी लाफिंग, शी मस्ट बी लाइक क्लास में डिसिप्लिन इशू. एक चीज मैं कहना चाहूंगी, जो भी एक टीचिंग प्रोफेशन में जो जाता है, उसके लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. वन इज पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको अंदर पेशेंस नहीं है, डोंट ज्वाइन दिस प्रोफेशन. Second is you have to be very very nice with your skills, in the sense when it comes to teaching skills. आपको एक ही चीज को किस तरीके से डिफरेंट बच्चों को पढ़ाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि क्लास में डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं, डिफरेंट टाइप के लेवल के बच्चे होते हैं. कुछ होते हैं जो क्लास में पढ़ना ही नहीं चाहते, कुछ होते हैं जो क्लास में सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं, और कुछ सिर्फ तुम्हें तंग करने के लिए आते हैं. There are 3 kind of a category in a class. तो आप किस तरीके कैटेगरी को किस तरीके से हैंडल करोगे, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल उनको आप किस तरीके से समझाओगे और उनको डिसिप्लिन में रखोगे, अपनी रिस्पेक्ट भी करानी. तो ये तीनों चीजें अगर आप टीचर ऐसा नहीं कर सकते, तो डोंट ज्वाइन दिस प्रोफेशन. जस्ट दिस इज अ कंफर्टेबल जॉब. नो, इट इज नॉट एट ऑल अ कंफर्टेबल जॉब. नो, टीचिंग कंफर्टेबल जॉब बिल्कुल नहीं है. So when you were a student, कौन सी कैटेगरी? I was very naughty. I was a backbencher. I was always, वो वाला बच्चा नहीं होता जिसको कहते get out from the class. मेरा फेवरेट काम टीचर्स को तंग करने का होता था. तभी ये रीजन है कि अभी क्लास में जो बच्चा मुझे सबसे ज्यादा तंग करता है, मुझे इसको लगता है ओके, यू आर लाइक मी. तो सबसे ज्यादा कौन से टीचर को तंग किया होगा आपने? आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स. आई हेट दिस सब्जेक्ट, बट मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे यही करना था. माय मदर एंड फादर बोथ वाज इन टीचिंग, सो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था. आई हैव टू बी इन कंप्यूटर्स. आई डिड इलेक्ट्रॉनिक्स, MCA, MTech, MPhil, MBA, PhD. मतलब ये सीरीज है, पर मुझे कभी भी टीचर नहीं बनना था. बट somehow I think it runs in my genes, तो करना पड़ा. आई थिंक मुझे लगता है कि शायद मैं इसी के लिए बनी हूँ. अब आई लव इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट, आई लव मेंटोरिंग देम. तो ये एक सिलसिला था कि जो 2010 से चला,
वो भी तक खत्म नहीं आया, दे आर स्टिल इन माई टच। और अब तो शादियां हो गई हैं, बच्चे हो गए, और शादी के कार्ड आते हैं तो ये चलता आ रहा है। तो ये बहुत जरूरी है, जो भी कोई प्रोफेशन चूज करो उसको इतने प्यार से करो क्योंकि वो तुम्हारा पैशन है, वो जॉब नहीं है। अगर जॉब, जिस दिन वो जॉब बन गई उस दिन आप उससे बोर हो जाएंगे, उस दिन आप थक जाएंगे, और उस दिन आप लगेगा कि नहीं, ये नहीं करना मुझे। So first you started in aviation, that means basically interacting with people. जी, Then you came into advertising, that means creating. Now you are into teaching, that means क्रिएटिव, आई वाज प्रिंट मीडिया, in the print media. आई वाज इन प्रिंट मीडिया, या So then also you must be creating something. So were you in creative line or were you in coordination line? No, I was creating a first page. Like my background was computer science, so I was that time. I think IT was not IT multimedia and all that. Animation was not very popular. So that time it was like, I think right time पे मैं right जगह थी. ये मेरे profession का एक बहुत बड़ा example है. जैसे अब अगर अभी साइबर सिक्योरिटी इज इन बूम, तो माय पीएचडी वाज इन साइबर सिक्योरिटी, तो आई थिंक मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं राइट टाइम पे राइट जगह पे होती हूँ शायद। ये भी So what, or when you left advertising and you joined as a professor, that I want to transform the life of the students now. So what made you become a teacher? Becoming a teacher it was very difficult. I must tell you, it was very difficult. First batch, which I told you, like it was a master student, so they taught me how to become a teacher. उन्होंने मुझे टीचर बनना सिखाया क्योंकि उन्होंने मुझे इतना परेशान किया। इवन माय ग्रेजुएट, मतलब जो बीबीए स्टूडेंट थे, उन्होंने इतना परेशान किया कि मुझे थक हार के वो पढ़ना पड़ा जो मैं कभी पढ़ना नहीं चाहती थी। मैंने उनके टाइम, अभी भी कहती हूँ मैं, कि तुमने मुझे टीचर बनना सिखाया। एंड आई हैव रिटन 7 बुक्स, क्योंकि वो उनको पढ़ाने के लिए मुझे इतना पढ़ना पड़ता था ना कि मुझे वो सारे एग्जाम्पल याद करके जाने पड़ते थे कि ये एग्जाम्पल इस तरीके से क्लास सेटल्ड होगी, इस तरीके से क्लास डिसिप्लिन्ड होगी, इस तरीके से ये लोग पढ़ेंगे। क्योंकि अगर मैंने डिफिकल्ट एग्जाम्पल दिया तो ये लोग नहीं पढ़ने वाले। तो समथिंग एग्जाम्पल रिलेटेड टू देयर डेली लाइफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर टीचिंग DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो बहुत जरूरी है कि उस, आई थिंक मुझे लगता है कि हम लोग एक चीज भूल जाते हैं कि हम उनको पढ़ाते तो है, पर हमको ये नहीं बताते कि उसका यूज डेली लाइफ में क्या है। अगर हम इनको कुछ भी सब्जेक्ट इनकी डेली लाइफ से रिलेटेड करके बताएं तो आई थिंक स्टूडेंट विल लिसन टू यू, स्टूडेंट विल रिमेम्बर, लिसन एंड आई थिंक अप्रिशिएट यू। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उनको इस तरीके से पढ़ाइए कि वो समझे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक जो हमारा इंडियन सिस्टम है या हमारा टीचिंग है पढ़ाने का, हम एक सिलेबस को फॉलो करते हैं। यू डिडंट टेल देम कि ये क्यों जरूरी है। तो जैसे मुझसे बीबीए के स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम वी आर मैनेजमेंट स्टूडेंट, हम IT क्यों पढ़ते हैं? तो मैं अब उसको, अभी उसका कभी फोन आता है तो मैंने कहा इसलिए पढ़ाया था मैंने तुम लोगों को कि अब IT इज इम्पोर्टेंट, IT बहुत जरूरी है। आप किसी भी चीज में कुछ भी पढ़िए तो बहुत जरूरी है आपके लिए। दिस इज अ न्यू नॉर्मल, जैसे अभी ड्यू टू दिस कोरोना, दिस इज न्यू नॉर्मल। तो ये बहुत जरूरी था। तो ये बहुत सारी क्वेश्चन है कि जब तक बच्चों को तुम बताओगे नहीं कि तुम उन्हें क्यों पढ़ा रहे हो या एक प्रोफेशन भी आप क्यों चूज कर रहे हो, वो उस चीज को नहीं समझेंगे। और एज अ मेंटोर ये हमारा जैसे होता है ना कि हमारा इस फर्ज है कि हम उनको समझाएं और उनको बताएं कि व्हाई वी आर टीचिंग दिस, व्हाई दिस प्रोफेशन इज इम्पोर्टेंट और कहाँ पे आप अपनी कैपेबिलिटीज को जस्टिफाई करेंगे। तो ये चीज, 3 चीजें जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपकी डॉक्टरेट की डिग्री ना बहुत लंबी है, तो वेयर डू यू गेट द इंस्पिरेशन टू स्टडी एंड PhD was very difficult. PhD was very difficult and कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। आई थिंक जब तुम टीचिंग में आते हो तो देयर इज नो ऑप्शन एज सच कि आपको अगर एकेडमिक्स में हो तो आपको PhD करनी ही पड़ेगी। देयर वाज नो ऑप्शन, बट यस आई डिड इट। उस टाइम आई थिंक आई वाज इग्नू, मैं पिले जी के साथ थी, वो मेरे हमेशा से मेंटर हैं। जो गुरु गोबिंद से, वो जो इग्नू के वाइस चांसलर थे, वो हमेशा से मेरे मेंटर हैं और उस टाइम वो वाइस चांसलर। तो उन्होंने कहा कि दिव्या, दिस इज अ न्यू सब्जेक्ट, साइबर सिक्योरिटी और सिक्योरिटी इन डेटा माइनिंग, तो करो। एंड इट, क्योंकि एक चीज होती है, उस टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी कि इग्नू में जब भी आप
बहुत सारे नंबर ऑफ, जैसे होता है ना कि एग्जामिनेशन अगर आप हो है एग्जामिनेशन, अब कितने आप अगर उसकी वेबसाइट पे जा रहे हैं तो जितने वो हैंग हो जाती थी, जिसे कहते हैं ना डिनायल ऑफ सर्विस, कि आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे, चाहे सीबीएसई का जब एग्जाम आता है, रिजल्ट आता है, तो आपने देखा है या रेलवे का होता है कि वो उनकी वेबसाइट हैंग हो जाती है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाई दिस इज हैपनिंग दिव्या, यू आर आईटी प्रोफेसर, आप बताइए। तो आई वाज क्लूलेस। तो उन्होंने कहा यू हैव टू डू पीएचडी इन दैट नाउ। तो यहाँ से मेरी पीएचडी की स्टार्टिंग हुई। तो ये था डे टू डे लाइफ, बट इट वाज डिफिकल्ट, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, इट टुक मी 7 years. long time. 7 years. So what all challenges you face in day to day life? What are? What all challenges do you face in your day to day life? Nowadays, you know, as such, there is no challenges. Now I'm finding something different, which I feel like I'm enjoying this. So now this a new thing is like, which I always want to do, my social work, Divya Foundation. I'm a very creative person. That is from starting. Like I was a very creative person. मुझे लगता है कि अब मैं इस क्रिएटिव चीज को इस तरीके से करूं कि लोग, जो हमारे यहाँ का जो लेबर क्लास है, उसको एक जॉब, जो एक 5 रुपए कुम्हार कमाता है, एक उसको 5 रुपए से 50 रुपए में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकता है अपनी डेली उसको। तो ये उनको कौन समझाएगा। तो ये मेरा फाउंडेशन है जो इस तरीके से काम कर रहा है। वी वर्क इन स्लम। और सबसे बड़ा चैलेंजेस तो अभी कोरोना के टाइम में ये था हमारे पास कि माय होल थिंग इज लाइक इन स्लम। तो अब कैसे कोरोना के टाइम पे इनको जिंदा रखना बहुत बड़ा काम था। ये लोग जाए नहीं यहाँ से, इनका फूड का देखना और इनका सोशली अवेयर करना कि ओके दिस इज अ फेज, दिस ऑल्सो गो, बट डोंट लूज योर होप। तो ये चैलेंजेस थे जो हमें कोरोना के टाइम पे मैंने काफी फेस किए, कि क्योंकि आई थिंक ये जो पैंडेमिक था हमारी लाइफ में बहुत अचानक आया और उसने सब कुछ ही चेंज कर दिया। हमारा जो था ना कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आई थिंक हम लोग इमोशनल डिस्टेंसिंग पे भी चले गए। तो वो था कि लोगों से हम दूर से तो बात कर सकते हैं, पर वो भी था कि पता नहीं शायद किसी को देखते हमें कोरोना हो जाए। और स्लम में तो ये है कि आई थिंक ड्यू टू वहाँ पे जिस तरीके का इन्वायरमेंट है, सोशल डिस्टेंसिंग का मोड नहीं चल सकता। तो ये प्रॉब्लम थी जो अभी फेस करी, तो अभी कर रहे हैं हम लोग। दिव्या फाउंडेशन का आइडिया कब और कैसे आया आपको? So I was in college. उसका आइडिया बहुत सिंपल था। People used to come and approach me due to like कि हमारे बच्चे का एडमिशन करा दीजिए मैम। तो मैंने एक दिन पूछा उनसे कि वाई बच्चे का एडमिशन क्यों नहीं रहा, वाई इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप ये तो आजकल तो फ्री है, जैसे जो लेबर क्लास होता है बच्चे का एडमिशन फ्री है, सब कुछ फ्री है, तो वाई यू आर नॉट गेटिंग दैट एडमिशन। फिर पता चला कि आधार कार्ड चाहिए होता है, तो आधार कार्ड इज नॉट मैंडेटरी। अब हुआ ये जाके उस टाइम आई थिंक अब पता नहीं क्या चल रहा है लोगों का, बट ये था कि आपके अभी भी शायद यही है कि आपके पास जहाँ पे भी आप घर पे हैं, आप 2-3 लोगों की गवाही दे दीजिए, एक एफिडेविट करिए और आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। बट कौन गाइड करेगा? तो वो गाइडिंग, अब ये भी होता है कि जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, इन लोगों तक कौन गाइड करेगा? एमएसएमई के कोई प्रोजेक्ट होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के, वो इन तक कौन पहुंचाएगा? तो जो पॉलिसी बनाने वाले होते हैं वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट स्पेस में है, जिनको लगता है कि ये लोग पढ़े लिखे हैं। ये लोग पढ़े लिखे नहीं है। आप अगर स्लम के लिए कुछ चीज बना रहे हैं या एक स्किल मिनिस्ट्री भी आपने बनाई है, तो उसके जो प्रोजेक्ट है आप देखिए वो कितने डिफिकल्ट है, वेदर दे आर एबल टू डू इट और नॉट। तो वो जो मेंटोरशिप का काम था वो वहां से शुरू हुआ। दिव्या फाउंडेशन की जो आधार था मैंने तभी रखा कि ओके वी विल टॉक अबाउट इट, सोशल इश्यूज पे बात करेंगे हम लोग। जहाँ पे एडमिशन नहीं होता, गर्ल चाइल्ड का अगर नहीं हो रहा, SC/ST बच्चा है, BPL में है, स्लम में है, तो हाउ कैन वी हेल्प अस। और उसके बाद यह है कि मेंटोरशिप के साथ कि इनकी डेली जो एक वेजेस है उसको किस तरीके से इंक्रीज करा जाए। तो वहां से ही कंसेप्ट है। तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए भी कि हम लोग गाइड नहीं करते। हमें लगता है कि हमारा जो ज्ञान है हमें अपने पास रखना है, वो थोड़ा वेस्ट हो जाएगा, बट इट इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। आपको अगर कुछ पता है तो आप बताइए। So amazing mentor is all about that only, to share your knowledge. Yes. How were you feeling when you got a Surya Gaurav Rashtriya Puraskar? It was a surprise. It was a total surprise, and it's an honest like story I want to tell you.
क्या हुआ कि मैं अपनी मेरा 14th अक्टूबर को दिस माय बर्थडे एंड आई वाज अबाउट टू लॉन्च माय 2 बुक्स। तो एक फोन आता है मेरे पास, उनका वाघमारे सर हैं फ्रॉम पुणे। उन्होंने कहा दिव्या वी हैव गिवन यू अवार्ड ऑन 5th सितंबर। तो मैंने कहा ओके, ऑन टीचर्स डे हमने आपको एक अवार्ड दिया था। तो मैंने कहा ओके सर। एंड वो 13th की बात है, 14th को माय बर्थडे वाज देयर, 13th को उन्होंने बोला कि आप इसको लेने आ सकते हैं प्रेस क्लब में। मैंने कहा इट्स नॉट पॉसिबल। तो कहते हम देने आ जाते हैं आपको 14th को। तो आई टोल्ड यू कि आई एम टू ब्लेस्ड, मैं हमेशा राइट टाइम पे राइट जगह पे होती। तो उन्होंने शायद पूरा स्टडी किया कि दिव्या फाउंडेशन क्या करता है, मेरे सारे आर्टिकल्स वगैरह पढ़े उन्होंने सोशल कॉजेज पे, एंड दे गिवन मी दिस अवार्ड एंड आई वाज लाइक वेरी थैंकफुल टू देम कि वो स्पेशली आए मेरे बर्थडे पे एंड दे गिवन दैट अवार्ड टू मी। दैट वाज स्टोरी। तो व्हाट डू यू थिंक, कोई शॉर्टकट है सक्सेसफुल लाइफ का या यू हैव टू वर्क हार्ड? No, there is no shortcut at first. You have to work hard. You have to work hard, and there are like few things. Whatever you are doing, there are few things. First, know yourself, know your capabilities, and then continuously work on it. अगर आपका लक्ष्य है, आपको पाना है, तो आप पाथ बदल सकते हैं उसका, आप अपना लक्ष्य नहीं बदल सकते। या तो आप उसको फाइंड आउट ही नहीं करें, तभी हम उस पे आते हैं। नो योर सेल्फ, नो योर कैपेबिलिटी। अगर आप बहुत अच्छा गाते हो तो आप अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए मत प्रैक्टिस करो। एक सिंपल चीज है, आप सिंपल उसके लिए ना करो। तो वो जो सबसे पहले आपको अपने आप से बात करनी होगी कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम। इफ यू लव इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट तो ज्वाइन दैट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आपको इंटरेक्शन का टाइम मिले। आप साइंटिस्ट नहीं बन सकते तब, बिकॉज साइंटिस्ट इज ऑल अबाउट रिसर्च। रिसर्च अगर करना चाहते हो तो आप वहाँ पे उस तरीके से। तो सबसे पहले तो नो योर सेल्फ, उसके बाद बहुत इजी हो जाता है। देन जस्ट यू हैव टू परस्यू योर पैशन। उसमें फिर आपको कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए कि मेरे को किस तरीके से करना है। तो दैट सक्सेस का मंत्र यही होता है कि फर्स्ट नो योर सेल्फ। वो होता है ना, उसके डब्ल्यूज हैं कि हु आई एम, व्हाट आई वांट, वेयर आई वांट। तो इस तरीके से आपने सारी चीजें करनी है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जितनी अर्ली आप अपने आप को पहचान लें। यहाँ पे काम आता है मेंटोर्स का और यहाँ पे काम आता है टीचर्स का, पेरेंट्स का, कि दे शुड इंकरेज स्टूडेंट कि हर एक कोई क्लास के अंदर 100 में 100 लाने वाला नहीं होता। जो 0 लाने वाला भी है ना, उसके अंदर भी बहुत सारी कैपेबिलिटीज है। So what all lesson have you learned in your professional life? What are? प्रोफेशनल लाइफ ने क्या क्या लेसन सिखाया अभी तक आपको? First is like very important. You have to be very honest towards your work. Honesty हमेशा पे करती है। Honesty चाहे किसी भी प्रोफेशन में। If you are honest towards your student will remember you throughout your life, like throughout life कि हाँ हमारी टीचर ने हमारे लिए बहुत मेहनत करी है। आप अगर उस पर शॉर्टकट देखेंगे कि एक असाइनमेंट दी, पढ़ाया, पीपीटी चलाई और उनको भूल गए, वो ना आपको याद करेंगे ना आपको कोई एक्सपीरियंस याद होगा। Similarly, that honesty is very important, hard work is very important, and you have to enhance your capabilities again and again. एक ही क्लास को आप डिफरेंट तरीके से पढ़ाओगे, एक ही सब्जेक्ट को। दैट मास्टर लेवल इज डिफरेंट, बैचलर लेवल इज डिफरेंट। आप बच्चों को जिस तरीके से पढ़ाते हो वो हर एक लेवल पे एक ही सब्जेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ, जिसे कहते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्पल से होगा। वो एक ही क्लास में एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है, पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है। तो दैट यहाँ पे एक होता है कि अगर मैंने आज ये सोच लिया कि मुझे सब आता है और मैं ये सोचने लगी, नहीं, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ कॉन्टिन्यूसली। और ये हमेशा हमारा है कि आज अगर आप जिस पे आपका कंपटीशन आपसे होना चाहिए कि मैं कल इससे बेहतर कैसे कर सकता हूँ। तो दैट कंपटीशन इज नॉट ही और शी कि दैट पर्सन इज दैट पॉपुलर और दैट पर्सन इज अर्निंग दैट काइंड ऑफ अमाउंट। योर कंपटीशन इज ओनली यू। Only you can defeat and only you can win yourself. कुछ भी सिर्फ आप कर सकते। तो ये एक बच्चे के लिए बहुत जरूरी है जो क्लास में उनको बताएंगे कि yes, if you cannot good in education, if you are not interesting in education, okay, what kind of a passion you want. और मैं क्लास में बच्चों से बात करती थी हमेशा कि अच्छा ठीक है, अगर ये नहीं है, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता था कि मैं इतनी ब्राइट स्टूडेंट नहीं रही, बट वाई आई एम सो गुड विद स्टूडेंट, बिकॉज आई लव इंटरेक्टिंग विद देम। तो आई थिंक वहां से ये स्टार्ट हुआ कि टीचिंग इज नॉट अबाउट कि आपके 100 में से 100 मार्क्स होना चाहिए या आप IIT के प्रोफेसर होने चाहिए। मैंने बहुत सारे टीचर्स देखे हैं जो बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं बट दे आर नॉट गुड इन टीचिंग, मतलब वो स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा पाते।
तो वहाँ पे एक होता है कि अगर आपका इंटरेक्शन नहीं है स्टूडेंट के साथ और आप उसको उस तरीके से बच्चों को मैनेज नहीं कर पा रहे तो आप एक गुड टीचर नहीं है। एंड पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है बच्चों को लेकर तो वही सारी चीजें हैं कि ये मैंने अपने प्रोफेशन पे सीखा है कि किस तरीके से आप अपनी कैपेबिलिटीज को ब्रश करेंगे एवरीडे। अगर आप वो नहीं कर पा रहे तो यू आर नॉट इनटू दैट। और आजकल का तो टाइम इतना फास्ट मूविंग है कि आपको रोज ही अपने बारे में पढ़ना समझना और रोज अपने आप को एनहांस करना पड़ेगा। और आप क्या, ये जो हमारा ई लर्निंग का मोड आया है, आपको लगता है कि जो हमारे टीचर्स थे जो ब्लैक बोर्ड से पढ़ाते थे वो बेचारे कर पाएंगे इसको? तो दे आर वर्किंग। और मुझे लगता है कि ये सबके लिए बहुत डिफिकल्ट है। इवन मैं आईटी प्रोफेसर होके भी मुझे लगता है कि किस तरीके से मैं फोन को देख के पढ़ाऊं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। किस तरीके से आप बच्चों को समझाएंगे? तो आई थिंक हम सब आपस में काम कर रहे हैं इनको एक बेटर इंसान बनाने के लिए। तो ये जरूरी है। एवरी डे वी लर्न। ये लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। So learning is basically in every second. So how do you लर्निंग एंड यू शुड नो योर वीकनेस ऑल्सो कि ओके दिस इज माई वीकनेस। माई स्ट्रेंथ तो ये है पर मेरी वीकनेस भी ये है। मेरी वीकनेस भी पता होना चाहिए कि तभी आप दूसरे लोगों से जब आप अपनी वीकनेस को मुझे लगता है अपनी वीकनेस लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ओके दिस इज समथिंग आई एम नॉट गुड इन दैट, आई हैव टू वर्क ऑन इट। जिस दिन आप उससे भागने लगोगे शायद वहां पे आप बहुत एक एस्केपिज्म इज नॉट अ आंसर। I always tell people कि whenever you are in a student age, तो हम हमेशा मैथ के वही वाले चैप्टर प्रैक्टिस किया करते थे जो हमें अच्छी तरह आते थे। हम कभी चैप्टर प्रैक्टिस नहीं करते थे जो हमें नहीं आते थे, जो हमें सीखने की जरूरत होती। तो ये सबकी आदत है। इन आवर प्रोफेशनल जर्नी ऑल्सो somehow we do that कि जिससे हमारी ज्यादा बातचीत होगी we will call them straight away and कहेंगे okay क्या है, and we will ignore those people whether they are of use or not जिनसे हमारी इतनी बातचीत नहीं होगी, but it's important to interact with them and we try to avoid those people. So it's like in the genes कि जो आएगा वही प्रैक्टिस करना है, जो नहीं आएगा उसको छोड़ देना है। और वन थिंग आई वांट टू टेल यू, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो शायद इस कन्वर्सेशन में रह जाएगी कि जो आपकी बुराइयां करते हैं ना, ऑलवेज लव दोस पीपल, उनको रखिए आपके आसपास। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपको बोले ना यू कैन नॉट डू दिस, बिकॉज वो आपको इस कंफर्टेबल जोन से बाहर निकालेंगे। और जो आपको कंफर्टेबल जोन से बाहर निकालेगा, जो आप पे क्वेश्चन मार्क लगाएगा, वो कहीं ना कहीं आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा। ये मेरे साथ बहुत होता था। ये मैं अपने साथ रखता हूँ क्योंकि whenever I create an idea ना, so there are my friends who I call, और मुझे पता है कि कुछ भी इनको चाहे अच्छा बताऊंगा मैं बेकार बताऊंगा, वो बिल्कुल इसके चिथड़े उड़ाएगा ही उड़ाएगा। But criticism is very important. Yeah, so but the best advantage of that is whenever they say anything, there would be some points which will benefit you in your concept. So you have to take a point and you have to implement those points instead of thinking कि अच्छा इसने बेकार बोल दिया तो ये तो बेकार ही है। तो ऐसा नहीं सोचना है। सोचना है कि भैया ठीक है, 10 चीजें बोली हैं, उसमें से 2 चीज मेरे काम की हैं, वो 2 चीज मेरे को अपने पास रखनी है, बाकी मेरे को उसके पास ही छोड़ देनी है 8 की 8। सो स्टूडेंट लाइफ में या अभी जैसे आप टीचर हो, जब स्टूडेंट से इंटरेक्शन करते हो, तो कई बार ऐसे मोमेंट भी आते होंगे जब आप बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते होंगे। तो ऐसा कोई मोमेंट जब किसी स्टूडेंट ने बहुत ज्यादा इरिटेट कर दिया हो? स्टूडेंट इरिटेट नहीं करते, मुझे काफी हद तक टीचर्स कभी कभार इरिटेट कर जाते हैं जो कलीग्स बिकॉज समटाइम्स यू नो व्हाट हैपन कि मुझे, अगर मैं आपको अपनी पूरी जर्नी का बताऊंगी, मैं फुल लाइक होता ना कि पूरी जर्नी में सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था कि आई एम मोर देन दिस फेस, कि आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम अ एजुकेशनिस्ट। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे लोगों को अपनी क्वालिफिकेशन बतानी पड़ती थी। वो मेरे को देख के कहते थे इसको ये क्या पढ़ी लिखी होगी। तो ये जो चीजें थी, एंड यू नो स्टूडेंट अगर क्लास में आ रहे हैं, दे आर नॉट बिकॉज कि वो मेरा फेस देखने आ रहे हैं या आई एम गुड विद इंटरेक्शन, दे आर कमिंग बिकॉज आई एम टीचिंग देम। मैंने बहुत मेहनत करी उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। तो ये जो चीजें थी ना, ये चैलेंजेस शायद अभी भी होते हैं मेरे साथ कि व्हेन somebody like कि she is just a face। तो नॉन कंटेंट टीचर, पीपल व्हेन यूज्ड टू से कि नॉन कंटेंट टीचर, तो आई थिंक मुझे अब लगता है कि मैंने अपने कंटेंट पे इतना काम कर लिया कि अब मुझे कभी सुनने को नहीं मिलेगा ये। बट दीज आर द थिंग्स, स्टूडेंट ने मुझे कभी इरिटेट नहीं किया। हाँ, उसके आसपास टीचर्स बहुत इरिटेट करते थे कि व्हाई शी इज सो पॉपुलर, व्हाई लॉट ऑफ लाइक स्टूडेंट, और 100 आउट ऑफ 100
किस क्लास में क्यों आते हैं। तो ये एक अजीब सी चीज थी जिसका कोई आंसर नहीं है। When somebody say कि okay you are just a face, तो आप उसको क्या आंसर दोगे? आप ये कहो कि अच्छा मैं नहीं पढ़ाती, मैं टाइम से नहीं आती, आई एम नॉट पंक्चुअल, आई एम नॉट हार्ड वर्किंग, तो इन चीजों के आप आंसर दे सकते हो, बट इस चीज का कोई आंसर नहीं है। तो माय चैलेंजेस वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्टार्टिंग कि क्या बात, इसका आंसर देना है, इसका इसका आंसर भी देना है क्या? तो ये चीजें थी। So when you are tired, how do you energize yourself? I read a lot. मैं शायद दिन में एक किताब खत्म कर लेती हूँ, एक या दो। Lot of like I love a lot. I love reading a lot. And मैं डॉक्यूमेंट्रीज बहुत देखती हूँ, इवन क्राइम शायद मुझे पसंद नहीं है, बट वो कैसे हुआ क्राइम, आई लव टू रीड अबाउट कि व्हाट इज द साइकी ऑफ अ पर्सन, कि जब आप कुछ क्राइम करते हो तो आपकी साइकी क्या होती है। एंड आई लव पेट्स, तो मेरे घर में बहुत सारे पेट्स हैं, सब जगह पेट्स हैं घर के अंदर, तो मेरे लिए सबसे मेरा स्ट्रेस बस्टर मेरे पेट्स होते हैं। एंड लव रीडिंग, ये बहुत जरूरी है कि आपको आपकी हॉबीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ हॉबीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप करिए वो सारी की सारी चीजें जो आपको खुशी दे, बिकॉज इट्स योर लाइफ एंड यू नो टू मेक योर सेल्फ हैप्पी। आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी ना, आपकी तो अपने ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको कोई खुश करने के लिए नहीं आएगा। यू हैव टू लव योर सेल्फ, यू हैव टू मेक योर सेल्फ हैप्पी, तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कुछ लोग होते हैं ना जिंदगी में सब कुछ होने के बाद भी वो दुखी हैं, तो मुझे लगता है क्यों दुखी हो भाई, तुम्हारे पास सब कुछ तो है, एंड इट्स योर ड्यूटी। कोई आपको खुश करने के लिए नहीं आने वाला, आपको खुश करने का काम आपका ही है। What all hobbies you enjoy? I have lot of hobbies. Like I love painting, I love pets and इंटीरियर मुझे बहुत पसंद है करना, मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, इंटरेक्शन मुझे बहुत पसंद है लोगों से करना, एंड सबसे इम्पोर्टेंट है आई थिंक मुझे हमेशा से सोशल वर्क करना बहुत पसंद था। When I do something for people ना, मुझे उस चीज से ज्यादा कहीं खुशी नहीं मिलती, चाहे मैं शॉपिंग कर लूँ कितनी भी, बट मुझे लगता है कि आई थिंक दैट इज द अल्टीमेट थिंग आई डिड फॉर समबडी। तो अभी भी था कि दिव्या फाउंडेशन के टाइम पे भी हम लोग बहुत सारे लोगों को ड्राई, और अभी भी जाता है, जितने भी पेट्स हैं उनके लिए खाना बनाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आई लव कुकिंग, तो उनके लिए खाना मैं खुद ही बनाती हूँ, एंड हम लोग रोज आई थिंक मोर देन 20 to 30 जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको खाना देते। तो ये आई थिंक बहुत जरूरी है कि आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन एंड थिंक लाइक इफ यू आर ब्लेस्ड तो इट्स योर ड्यूटी टू गिव बैक टू सोसाइटी। उससे अच्छी चीज नहीं हो सकती। ये हमें अपने किड्स को भी पढ़ाना चाहिए कि देखो अगर आप सक्सेसफुल हो जाए, आप कितनी भी बायोग्राफीज पढ़े, हाँ मुझे बायोग्राफीज पढ़ने का बहुत शौक है, तो जितनी भी आप बायोग्राफीज पढ़े उनमें सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट ये होता है कि जब वो जितने सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो उतने हम्बल हो जाते हैं, और हम्बल होने के साथ दे गिव टू द सोसाइटी। वो बहुत जरूरी है कि आप अपनी सोसाइटी को जरूर दीजिए। आपका जो तभी CSR एक्टिविटीज हुई हैं कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का रीजन क्या है कि व्हेन यू आर सक्सेसफुल डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, क्योंकि अल्टीमेटली आप उसका पार्ट हो। आपकी सोसाइटी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आप भी बढ़ोगे। और जनरेशन जो होती है, अपनी जनरेशन को समझाइए कि ये आपकी ड्यूटीज हैं। मैं बहुत सारे वृद्धाश्रम का भी पार्ट रही हूँ, तो वहाँ पे बड़ी सैड स्टोरी होती थी कि वहाँ पे बोला जाता था कि हमारे बच्चों ने हमें यहाँ पे छोड़ दिया, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलती हमारी है कि हम अपने बच्चों को कभी भी ये नहीं समझाते सिखाते कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोशल कॉजेस में कंट्रीब्यूट करने की। किसी को एक अच्छा और सक्सेसफुल इंसान बनाने का मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो या वो अच्छा कमाए, इसका मतलब है वो अच्छा इंसान भी बने। तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है? पेरेंट्स की, टीचर्स की। तो बहुत जरूरी है, मुझे लगता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं अगर आप एक जनरेशन ने बहुत कमा लिया और उस जनरेशन को आपने अपनी चीजें नहीं सिखाई तो वो जीरो पे आ गई ना, फिर आपने क्या करा? तो ये जरूरी है। तो ये आई थिंक बहुत, मैंने इन चीजों पे काफी लगता है मुझे कि जैसे मेरा बेटा है तो मैं उसको समझाती रहती हूँ कि करना बहुत जरूरी है कि अगर मैंने कुछ भी स्टार्ट किया, जैसे दिव्या फाउंडेशन के, कल को अगर हम जो भी पर्टिकुलर एज के बाद हमें जाना है, उस एज के बाद कौन उस लेगेसी को आगे बढ़ाएगा? तो लेगेसी को आगे बढ़ाने का मतलब है आपको नेक्स्ट जनरेशन को जरूर सिखाना है। तभी यंग ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी मुझे लगता है कि टीचर में हम बहुत कुछ उनको सिखाते हैं। एजुकेशन का मतलब एक अच्छा इंसान, एक अच्छी जॉब से बेटर है उनको एक अच्छा इंसान बनाना।
तो ये हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है वहाँ पर। So offline education is off right now and online education is in right now. अब ऑनलाइन एजुकेशन से पहले ईच एंड एवरी पेरेंट्स यूज टू टेल देयर चिल्ड्रन कि मोबाइल से दूर रहना है या टीवी से दूर रहना है या कंप्यूटर आपको थोड़ा यूज करना है, बट अब उसका ठीक अपोजिट हो रहा है। वो बोला नहीं मोबाइल लो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। सो वंस we again go to normal and we again starts our offline classes, so what would be the impact on students as well as parents? How will they convince their children कि अच्छा ठीक है मोबाइल से दूर रहो? क्या आपको नहीं लगता कि वो चिल्ड्रन जो है जिसको हम बोल रहे हैं कि भाई मोबाइल के साथ रहो, फिर बोलेंगे मोबाइल से दूर रहो, तो वो कंफ्यूज टाइप का माहौल नहीं हो जाएगा स्टूडेंट के दिमाग में? मुझे लगता है कि एक बार हमें टेक्नोलॉजी की आदत पड़ जाती ना, हम रिवर्स में नहीं जाते। ये अब न्यू नॉर्मल होने वाला है। दैट ट्रेडिशनल टीचिंग विल बी देयर बट दिस ऑनलाइन मोड विल बी देयर। आई थिंक ये नहीं जाने वाला, ये रहेगा। क्योंकि आपको लगता था कि अगर हम ब्लैक बोर्ड पे अगर चौक से पढ़ते थे, हम दोबारा से स्मार्ट बोर्ड पे आए तो हम दोबारा चौक पे चले गए। टेक्नोलॉजी कितना भी, तो आई थिंक ये न्यू नॉर्मल है, हमें एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। ये हमारे लिए एक आई थिंक एजुकेशन के अंदर ई लर्निंग बहुत बड़ा मोड अब बन के रहेगी। हाँ, हाइब्रिड मॉडल चल सकता है जिसमें स्टूडेंट विल कम, जैसे बाहर फॉरेन में होता है कि स्टूडेंट विल कम फॉर देयर डाउट, बट पढ़ने के लिए तो उनके पास यूट्यूब से भी बहुत कुछ है। और ये अब आई थिंक ये न्यू नॉर्मल होने वाला है। बच्चे नहीं जाने वाले दोबारा से। अब इनके हाथ में आपने फोन दे दिया है, इनके हाथ में आपने सारी की सारी टेक्नोलॉजी बता दी है, so they will not go back to the traditional teaching. That can be that can be a part. Hybrid model can be a part in which that e-learning mode is there, digital learning रहेगा और traditional teaching रहेगा. But ये पूरी तरीके से वैनिश नहीं होने वाला। अब आपको दोबारा से इनको कॉपी किताब पे नहीं लगा सकते। मुझे नहीं लगता होगा। नहीं, पर मेरे को लगता है कि पहली बार स्टूडेंट में कुछ अपग्रेडेशन हुई है। बिकॉज इफ यू सी कि ब्लैक बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड आया, तो टीचर के लिए ब्लैक बोर्ड पे चॉक की जगह स्मार्ट बोर्ड आ गया और उसके हाथ में पेन आ गया। पर स्टूडेंट थे वो तो अभी भी वो पुराने वाले स्टूडेंट थे, वो अभी भी बैग लेके जाते थे, वो अभी भी बुक्स भर के लेके जाते थे, अभी भी वो डेस्क पे लिख के ब्लैक बोर्ड पे की जगह वो स्मार्ट बोर्ड पे क्या हो रहा है वही अपनी कॉपी में लिखते थे। तो फॉर देम देयर वाज नो अपग्रेडेशन एज सच, इट्स माय पर्सनल थिंकिंग। But now when we have gone to an online platform, so there is some upgradation as far as students are concerned. Otherwise, there was all old ways which students were following. What's your opinion on that? तो मुझे हमेशा से ये है कि अगर आप एक चीज सिखा देते हैं ना इनको, रिवर्स प्रोसेस बहुत, रिवर्स इंजीनियरिंग सिर्फ इंजीनियरिंग में होता है, यहाँ पे नहीं होगा। बट हाँ, इनको सीखना पड़ेगा बिकॉज यू नेवर नो कि कल को और क्या होगा। तो ये जो ऑटोमेशन 4.0 में हम एंटर कर रहे हैं और हमको पता चल चुका है कि इस तरीके से, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, ये पॉसिबल था पहले। टेक्नोलॉजी ने लाइफ को बहुत ईज करा है, बहुत इजी चीजें भी करी हैं, कॉस्ट इफेक्टिव करा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे साथ आई हैं। इस कोरोना के टाइम में बहुत सारी चीजें बर्बाद करी, तो कुछ हमें कुछ अलग अलग चीजें भी हमें बताई हैं। तो उनमें से ये है कि इंटरेक्शन बिकम्स वेरी इजी। अब आप किसी से भी फोन पे बात कर सकते हैं, आप किसी से भी आप आराम से इंटरव्यू ले सकते हैं, वरना एक इंटरव्यू आप सोचो ट्रेडिशनल तरीके से कराने में कितना मुश्किल होता था। तो बच्चे भी ये सीख चुके हैं और सब कुछ इनके पास, अब आप देखिए सब कुछ इनके पास ऑनलाइन अवेलेबल है। जब ऑनलाइन अवेलेबिलिटी हो जाती है चीजों की, तो किस तरीके से हम उस मॉडल पे जाएंगे। हाँ, ये जरूरी है कि हम यहाँ पे आता है गवर्नमेंट का पार्ट, कि किस तरीके से आप अपने कॉलेजेस को, स्कूल्स को और इवन रूरल एरिया को इक्विप करेंगे। वहां पे जहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी, हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, वहां पे आप अगर आप बात करें, वाईफाई की बात करें, स्मार्टफोन्स की बात करें या लैपटॉप की बात करें, रोटी कपड़ा मकान के अलावा आई थिंक अब लैपटॉप भी आएगा साथ में, तो ये पॉसिबल है क्या? तो हमें बहुत सारी चीजों पे देखना पड़ेगा कि जो डाइवर्सिटी है ना हमारे पास, और डाइवर्सिटी से हम कैसे करेंगे और किस तरीके से। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अगर आपने देखा होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, उसमें तो यह है कि बच्चे कभी भी एजुकेशन को, डिप्लोमा भी है, डिग्री भी है, सर्टिफिकेट भी है, तो सस्टेनेबिलिटी बहुत बड़ा इशू बनने वाला है। कल तो हम बच्चों को ये कहते थे कि तुम डिग्री नहीं करोगे तुम्हारा क्या होगा, अब क्या कहें, अब क्या कहेंगे? इवन पेरेंट्स क्या कहेंगे?
तो व्हाट डू यू एडवाइस स्टूडेंट्स जब अपने सब्जेक्ट को चूज करते हैं, व्हाट ऑल थिंग्स शुड दे कंसीडर बिफोर चूजिंग? First of all, talk to yourself कि why you want to be in that profession, why you want to do this. Science student बनना चाहते हैं, कॉमर्स स्टूडेंट बनना चाहते हैं, आर्ट्स लेना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज करना चाहते हैं, तो रीजन क्या है? और मुझे लगता है कि आज का टाइम वो टाइम है जब बच्चों को हम स्किलिंग के ऊपर करें, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर स्किलिंग के ऊपर उनको कहें कि ओके, आपको जाके इतना पढ़ने के बाद, इतना पैसा मार्केट में देने के बाद, यू हैव टू वेट फॉर अ समबडी कि जहाँ पे वो आपको आके जॉब दे, या आप खुद एंटरप्रेन्योर बने और आप सोचे कि मैंने ये कर लिया, अब मैं जॉब क्रिएटर बनूं। तो जॉब क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, क्योंकि हम बहुत ही स्पेशली मुझे लगता है कि एक ऐसे टाइम पे है जहाँ पे एजुकेशन बीच में है। हमें समझ नहीं आ रहा हम आगे बढ़ेंगे तो किस तरीके से बढ़ेंगे, क्योंकि जॉब सिनेरियो जहाँ तक बात है खत्म हो चुके हैं। ये कोरोना के टाइम से नहीं, उससे पहले भी इकोनॉमी हमारी काफी हद तक जीरो पे ही थी। मुझे जितना भी लगता था कि हम कॉलेज में भी थे, कहीं पे भी मुझे लगता नहीं था कि एक ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पे जॉब बहुत इजीली मिल रही है। अगर आपको इतना सब कुछ पढ़ने के बाद, पैसा लगाने के बाद भी 10,000 की जॉब करनी है, बीपीओ ही ज्वाइन करना है, तो वाई दिस काइंड ऑफ एजुकेशन? हमारी एजुकेशन में जॉब क्रिएशन नहीं है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें समझना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि एक बच्चा, एक पेरेंट जो इतना पैसा लगा रहा है, इतना टाइम लगा रहा है, वो इस तरीके को हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं उसके प्रोफेशन को। As you see in each and every college, so no college focuses on or shows कि इतने बंदे मेरे पास से निकल के एंटरप्रेन्योर बने, whereas all colleges only focus on कि मैंने इतना प्लेसमेंट दिया। So somehow don't you think कि पहले से ही हम उनके दिमाग में डाल दे रहे हैं कि okay, you don't have to be a job creator, you have to take a job after your education? उसका रीजन पता है क्या है सर? मुझे हमेशा से ही लगता है कि हम लोग एक कंफर्टेबल जोन पे, हम सरकारी नौकरी इसलिए नहीं करना चाहते कि हम देश के लिए कुछ करेंगे, हम सरकारी नौकरी सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो। वो जो माइंड सेट है ना, वो माइंड सेट हमें चेंज करना पड़ेगा। वो माइंड सेट हमें स्टार्टिंग फ्रॉम पेरेंट्स की, आप एक जॉब इसलिए नहीं कर रहे कि आपको एक घर में कहते हैं ना सरकारी नौकरी मिल गई, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा इंडियंस का माइंड सेट है, और शायद हमारा देश तभी कुछ आगे नहीं बढ़ता कि हमें लगता है कि जॉब के बाद अब हमें कुछ करना नहीं है। वो करेज नहीं है, वो नहीं है, जैसे कहते हैं ना इंस्टिंक्ट नहीं है कि जिसको कुछ करने का जुनून, जिसे कहते हैं ना कि हम ये कुछ नया करेंगे, वो शायद बाहर के देशों में बहुत है। और शायद उनकी जो सरकार है उनको इस तरीके से माइंड सेट करा हुआ है उनका। चाहे आप जापानीज टीचिंग देख लीजिए, वहाँ पे बहुत जरूरी है कि इनोवेशन पे ध्यान है। यहाँ पे इनोवेशन के नाम पे कुछ नहीं है हमारे पास। इनोवेशन के नाम पे हम कुछ नहीं करते, ना हमारा टीचर इनोवेट करना चाहता है, ना हमारे पास हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहते हैं, ना हम बच्चों को सिखाते हैं। हम कहते हैं नहीं सिलेबस है, आपको इसको पढ़ना है, आपको इतने मार्क्स लाने हैं और फिर निकलो तुम यहाँ से। तो ये तो पूरा एजुकेशन सिस्टम ही हमारा ऐसा, तो हम कहाँ से इसको करेंगे? और इवन हमारा जो टीचर है वो सपोर्ट करेगा? एंटरप्रेन्योरशिप कितने लोगों को आती है सर, मुझे बताइए? कितने टीचर हैं जो एंटरप्रेन्योर खुद हैं? एंटरप्रेन्योर एक सब्जेक्ट हो सकता है, पर एंटरप्रेन्योर वो कितनों को पता है कि किस तरीके से एंटरप्रेन्योर बना जाता है, किस तरीके से पेटेंट कराया जाता है, किस तरीके से आप अपना मॉडल को पेटेंट कराएंगे, किस तरीके से आपको इसमें जिसे कहते हैं ना कि किस तरीके आपको फाइनेंस मिलेगा, इसके अंदर पैसे कहाँ से आएंगे, किस तरीके से आप मॉडल बनाएंगे, या गवर्नमेंट किस तरीके से देगी। और आप गवर्नमेंट की अगर प्रोजेक्ट भी देखें तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट, मैंने वो पहले ही कहा कि बहुत लेंथी है उनका प्रोसेस। इससे लोग कहते हैं कि नहीं हमें नहीं करना है। तो वही तो है चीजें, पॉलिसी मेकर भूल जाते हैं कि जिनके लिए पॉलिसी बनाते हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा इसको आगे बढ़ना। देयर इज अ गैप। So what would you suggest to your student कि ग्रेजुएशन के बाद पहले उनको जॉब लेनी चाहिए, कुछ एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए, एंड देन दे शुड गो फॉर एंटरप्रेन्योर, और दे कैन डायरेक्टली गो फॉर एंटरप्रेन्योर? वही ना, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं। यू हैव दैट काइंड ऑफ अ कैपेबिलिटी। आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, या आप उस पर्टिकुलर चीज में आपको ये पता है कि ओके आई एम डूइंग दिस प्रोजेक्ट, या मैं इस प्रोजेक्ट को कर रहा हूँ, मैंने इस फैक्ट्री को बनाया या मैंने इस प्रोडक्ट को बनाया, तो आई हैव फुल फेथ इन दैट।
एक छोटा मैं कहती हूँ कि आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया में, इतने अच्छे अच्छे टैलेंट है हमारे पास, बाहर जाके वो लोग अच्छी जॉब पे हैं, सारे के सारे सीईओज हैं, हर एक बड़ी फर्म के अंदर इंडियंस है, बट इंडिया के पास आज तक एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसको कहा जाए वो इंडिया ने खुद बनाया है। नो प्रोडक्ट, और इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी नहीं है हमारे पास, तो देयर मस्ट बी सम गैप, कुछ ना कुछ तो होगा ना कि हम लोग आज तक कुछ ऐसा नहीं बना पाए। आप एग्रीकल्चर की बात कर लीजिए, हमारा एग्रीकल्चर, इतना सही लैंड है हमारे पास, इतना अच्छा वो है हमारे पास, क्लाइमेट है, बट हम उसको चीज जो हमारी बेसिक चीज है उसको भी हम ठीक नहीं कर पाए आज तक। आपने आज तक एक इक्विपमेंट बनाया किसान के लिए कि जिससे उसको पता चल जाए कि अभी बाढ़ नहीं आएगी या मौसम कैसा रहेगा? आप छोटी से छोटी चीज नहीं करने, आप बच्चों को बताइए कि एग्रीकल्चर बेस्ट है हमारे लिए। हम आईटी लोग नहीं है, हम आईटी के लिए नहीं है, हमारा जो क्लाइमेट है वो इस तरीके से कि हमें किसी की जरूरत ही नहीं है, बट हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। आप ऐसे इक्विपमेंट बच्चों को बनाने सिखाएंगे जो हमारी बेसिक नीड पे हमें उसमें सहायता करें, हेल्प करें उन लोगों की। तो छोटी छोटी चीजें ये हमें करना पड़ेगा जब बच्चा एक ग्रेजुएशन लेवल पे आ रहा है, जहाँ पे हम उनको बताएं कि ओके दिस इज योर CSR एक्टिविटीज, आप करिए इन लोगों के लिए काम। आप एक ऐसी ऐप बनाइए जहाँ पे आपको लगे कि जो घर के अंदर बुजुर्ग लोग हैं वो किस तरीके से अगर बीमार है, अकेले रह रहे हैं, तो आप उस ऐप से उनको लोकल केमिस्ट के पास वो आराम से उनके पास आ सकता है। छोटी छोटी चीजें जिन पे आप उनको जरूरत है, बट वो आइडिया देगा कौन? आइडिया देने के बाद उनको किस तरीके से वो करेंगे? तो यहाँ पे मेंटोर्स का काम आता है, एंटरप्रेन्योर जो इस तरीके से सोचे like you. कि आपने बट इज अ फूड फॉर थॉट कि हम इतने बड़ी पॉपुलेशन है हमारे पास एक्सीलेंट माइंड है जो बाहर जाके तो बहुत अच्छा कर रहा है, बट आज तक हमने एक भी ऐसा प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाया है? इवन आयुर्वेदा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट आयुर्वेदा के कितने फ्रॉड होते हैं हमारे पास, और आयुर्वेदा के लिए हम जाने चाहते हैं। So you keep on interacting with the students. So is there any type of student, या जब आप स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हो तो कितने % ऑफ स्टूडेंट कहते हैं नहीं मैंने अपनी चॉइस से ये कोर्स ऑप्ट किया है, या कितने % ऑफ स्टूडेंट ये बोलते हैं नहीं मैं तो और कुछ बनना चाहता था पर पेरेंट्स ने फोर्स किया इसलिए मैं ये कर रहा हूँ? ये काइंड ऑफ अ कन्वर्सेशन मुझे मास्टर लेवल पे दिखता है। जब बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आते हैं ना, दिस काइंड ऑफ अ कन्वर्सेशन तब होता है। ग्रेजुएशन में तो आई थिंक कोई भी क्लूलेस होते हैं, जो पेरेंट ने कह दिया वो करना है, बट आई थिंक मास्टर्स में बच्चे फिर भी हो जाते हैं कि इफ यू आर डूइंग मास्टर्स, यानी कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे पहुंच गए हैं, तो बच्चे वहां पर इस तरीके से बात करते हैं कि ओके मैम, हमारे काफी अच्छे बच्चे निकले हैं जो एंटरप्रेन्योर बने हैं। तो वो हम लोग उस पे, मैं अपने कॉलेज में एंटरप्रेन्योर सेल चलाती थी, तो उसके अंदर होता था कि हम बच्चों को बताते थे कि ओके इफ यू वांट टू बिकम, हम इसका सोच सकते हैं, वी कैन मेक अ थिंक टैंक कि ओके डूज एंड डोंट्स क्या हो सकते हैं, हाउ यू विल डू दिस प्रोजेक्ट, आप इसका पेटेंट कैसे कराएंगे, किस तरीके से, जैसे सिर्फ छोटी सी चीजें। अब ये जैसे मुझसे बोला, एक सेमिनार में ले रही थी वेबिनार पे, तो उसमें बोला कि प्लेसमेंट नहीं हो रही मैम, क्या करें? तो मैंने कहा सर प्लेसमेंट तो होगी भी नहीं, क्योंकि इस टाइम तो हमारे पास ऑलरेडी क्या कहते हैं वो है, ड्यू टू सोशल डिस्टेंसिंग हम जा नहीं सकते, सारी की सारी जो सबसे जो लुक्रेटिव जॉब थी वो सारी की सारी बंद हो गई, जिससे कहते हैं ना होटल मैनेजमेंट एंड ऑल दैट। तो आप इस टाइम बच्चों को ऐसा क्यों नहीं करते कि आपकी जो वेबिनार है आप इसी में इनकी हेल्प लीजिए, क्योंकि ये हमसे ज्यादा टेक्निकल सेवी हैं। किस तरीके का टॉपिक होगा, किस तरीके का यहाँ पे कौन सा प्लेटफॉर्म यूज होगा, जूम यूज होगा, गूगल टॉक यूज होगा, या कुछ भी यूज होगा, आप इनकी हेल्प लीजिए और उन टीचर्स के साथ इनका एक थिंक टैंक बनाइए 3-3, 4-4 बच्चों का, जो उनको आईटी की चीजें सिखाए, क्योंकि ये हमसे ज्यादा, हम तो इसके माइग्रेंट थे, ये बॉर्न नेटिव साइंस के, इनको हमसे ज्यादा पता है सारी की सारी चीजें। तो हम क्यों ना इन बच्चों को अपनी एक्टिविटीज में यूज करें कॉलेज के अंदर, और दैट विल बी द बेस्ट एलुमनाई फॉर अस, क्योंकि इस टाइम पे आप उनको वो सिखाओगे जो किसी ने नहीं सिखाया है इनको। तो आइडियाज तो हैं। जनरली इसलिए कि जब भी कोई डिस्कशन होता है तो मेनली सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स का होता है, बट इफ यू सी कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के पीछे बहुत सारे फेलियर्स होंगे, and people do not discuss about those failures, or people do not discuss about entrepreneur who have failed. But
डोंट यू थिंक कि जो फेल्ड हो गए हैं उनसे हमें ज्यादा सीखने को मिल सकता है, डूज एंड डोंट ज्यादा मिल सकते हैं इंस्टेड ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर? मुझे लगता है कि जो लोग फेल होते हैं ना उनसे, मैं आपको बताऊंगी, मैंने बहुत सारी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी हैं लोगों की जो सच में बहुत फेल हुए हैं, हर एक चीज को ट्राई कर करके फेल। पर उनका रीजन यही था कि इतने, अब ये है कि बिल गेट्स भी वगैरह हो गए या जितने भी लोग थे वो ऑलरेडी पहले फेल ही थे, वो तो काफी बाद ये लोग बने। पर आप समझो तो सही कि अगर आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, वहीं पे पहली चीज आती है कि इफ यू आर डूइंग योर लाइक पैशन कॉन्टिन्यूसली, आप उसके अंदर इनहेंस कर रहे हो अपनी कैपेबिलिटीज को। आपने एक पेटेंट बनाया, आपने एक कोई भी आपने एक डिजाइन बनाया, तो आप उस डिजाइन में इनहेंस करते, तभी तो वर्जन आता है कि एप्पल का पहला वर्जन आप सोचो कैसा था और अब वाला वर्जन कैसा है। आप सोचिए एंड्रॉइड ने पहले कैसे बनाया, आप कैसे। तो इसी तरीके से आपको भी अपने अंदर काम करना पड़ेगा। जो फेलियर तभी होता है जब हम फेल मान चुके होते हैं। तो जो फेलियर होते हैं उनके साथ आपको एक लर्निंग प्रोसेस मिलेगा, एक लर्निंग जैसे कहते हैं ना कि वो मिलेगी, जिसे कहते हैं कि एक्सट्रैक्ट मिलेगा कि वो उन्होंने छोड़ दिया फेल होने के बाद, कि वहां पे उन्होंने मान लिया कि अब मैं ये कर नहीं पाऊंगा, बट उसके बाद आपने सोचा कि जो नहीं रुके वो सक्सेसफुल तो हुए। तो मिडिल तक जरूर पढ़िए कि कहाँ तक, अब वो जहाँ तक अनसक्सेसफुल थे तो लोगों ने क्या क्या कहा, उन्होंने कितना पैसा, और बहुत सारी स्टोरीज है हमारे पास, मैगडीज की स्टोरीज है, KFC की स्टोरीज है, क्योंकि वो लोग फेलियर ही थे उससे पहले, उसके बाद उन्होंने उस चीजों पे काम किया। जितने भी सक्सेसफुल लोग थे सबके पास कुछ ना कुछ ऐसा था जिन्होंने कहा, एक टाइम पे उनको लगा कि उनको छोड़ देना चाहिए। तो हर एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ है। सो व्हेनेवर ही क्रिएट्स एन आइडिया, तो जो सराउंडिंग उसकी होती है वो ज्यादातर उसके पास आके यही बोलती है कि क्यों कर रहे हो, या ये बेकार है, इसको छोड़ दो, जो तुम कर रहे हो ज्यादा अच्छा है, नया आविष्कार मत करो। तो इन इंडिया इफ यू सी देयर आर मोर फॉलोअर्स देन क्रिएटर्स। तो एक चीज अगर सक्सेसफुल होगी, तो फॉर एग्जाम्पल अगर ई कॉमर्स सक्सेसफुल है तो सब लोग ई कॉमर्स के पीछे भाग रहे हैं। सो यू विल नॉट सी कि भाई बंदा कोई क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और रिस्क टेकिंग फैक्टर, पीपल डू नॉट वांट टू टेक रिस्क। सो व्हाट वुड यू से टू स्टूडेंट, शुड दे बी ए क्रिएटर, ए फॉलोअर एंड ए रिस्क टेकर? No, they should be a creator. आपको क्रिएट करना बहुत जरूरी है, एंड फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस तो रखो, दुनिया आपके ऊपर कॉन्फिडेंस तब रखेगी जब आपको अपने अंदर होगा, और वहीं से वहां से आई थिंक मुझे लगता है कि अपब्रिंगिंग का रोल आता है, पेरेंट्स का रोल आता है कि whatever they are doing, just talk to your kids. हम लोग बात करना भूलते हैं, हम लोग अपने बच्चों से बात नहीं करते, हम लोग पता नहीं क्या कौन सी टाइम पे जब हम बच्चों को ये नहीं बताते कि ओके फेल ही तो हो गए, कोई बात नहीं, दोबारा कर लोगे। बट फेल होके गिरना और गिरने के बाद उठना भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तो वहां पे जो स्ट्रेंथ होगी, और मुझे लगता है कि जो बचपन होता है ना, बचपन जो जिसे कहते हैं ना कि फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चे को बचपन से जो समझाओगे, सिखाओगे और उसको जिस तरीके से आप मोल्ड करोगे वो ही बनेगा। वो स्कूलिंग तक बच्चा बन चुका होता है, उसके बाद वो उस चीज पे ट्राई ही कर रहा होता है। जैसे मैं अपने बचपन का बताऊं, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी रोका नहीं किसी भी चीज के लिए। दे ऑलवेज नो कि शी इज वेरी इंडिपेंडेंट, जो इसका मन होगा वो ही करेगी है। तो दे ऑलवेज हैव दैट फेथ कि ये करेगी तो जरूर, पर अपने मन का, ये कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिसको नहीं करना चाहिए। इसको इतना तो हमने इसको एक अच्छे, इसको क्या कहते हैं, उसको संस्कार दिए हैं, इसको अच्छी वैल्यूज दिए हैं, बट साथ में ये है कि शी विल नॉट लिसन। अपने मन का करना। How was your schooling? My schooling was too good, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। स्कूलिंग भी, कॉलेजेस भी बहुत अच्छे थे। आई थिंक जो नॉटी बच्चे होते हैं उनके पास बहुत कुछ होता है बताने के लिए। तो मैं आई वाज लाइक वन ऑफ द मोस्ट नॉटीएस्ट वन, जिसको पढ़ने का कोई शौक नहीं था, जिसको क्लास में सिर्फ तंग करने के लिए जो आते थे, मैं उन बच्चों में थी जो क्लास में सिर्फ तंग करने के लिए जाते थे। तो बहुत अच्छा रहा है। मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं कि मैंने किस किस तरीके से टीचर्स को तंग किया, जो मैं नहीं बताने वाली। मैंने बहुत तरीके से, और वो अब टीचर्स, मुझे एक टीचर ने मुझे कहा कि जब कुछ बन जाओगे ना तो हमें जरूर मिलना आगे देना। तो जब मैं जाती हूँ ना तो मैं हंस रही होती हूँ। तो ये बहुत जरूरी है। बट मैंने कहा सर आई लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। तो मुझे अभी भी लगता है कि आप लोगों में कितना पेशेंस था। अगर मेरा जैसा स्टूडेंट क्लास में आ जाए तो मैं को 2 मिनट के लिए लगे कि ओ माय गॉड ये कैसी क्लास है,
क्योंकि जो बच्चे सिर्फ इसलिए आते हैं कि तुम्हें तंग करना हो, तो वो काफी डेंजरस बच्चे होते हैं। तो बहुत करी आपने। हाँ, मैंने बहुत स्थिति करी। आई वाज द नॉटीएस्ट वन, और मेरी मदर को पूरा विश्वास था इसने जिंदगी में कुछ नहीं करना सिवाय शैतानी होती। तो शी इज वेरी हैप्पी नाउ डेज। जब मुझे वो देखती हैं कि शी इज अ प्रोफेसर नाउ, शी इज अ डायरेक्टर इन यूनिवर्सिटी, तो शी इज लाइक वेरी हैप्पी। तो लिस्ट वो काफी ज्यादा would be a parents teacher meeting, तो लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स होती होगी फॉर योर पेरेंट्स कि भाई ये लिस्ट ऑफ कंप्लेन है इस बार आपकी बेटी की। एक्चुअली ऐसा होता था कि जिस दिन कंप्लेंट नहीं आती थी, माय फादर यूज्ड टू से तुम स्कूल नहीं गए आज। 2-3 दिन हो गए कंप्लेंट नहीं आ रही, तो व्हाट इज द रीजन कि तुम स्कूल नहीं जा रहे आजकल। तो मैं स्कूल से भी काफी बंक मारती थी, तो उनको था कि स्कूल क्या पता गई ना हो ये। मैंने शायद काफी फेजेस अपने लाइफ के काफी एंजॉय करे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वट एवर यू आर डूइंग, चाहे आप बहुत ही बेकार स्टूडेंट हैं, चाहे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप कुछ भी हैं, आप हर एक फेज लाइफ का एंजॉय करिए, क्योंकि ये लाइफ एक ही बार आनी है। दुखी रह के कुछ मत करिए, दुखी नहीं रहना। How would you define yourself? आई एम हैप्पी स्पिरिट, जिसे कहते हैं ना, हैप्पी एंड वेरी इंडिपेंडेंट। मुझे कुछ, और मैं रिस्क टेकर हूँ। आई एम अ रिस्क टेकर। मुझे कोई ये कहेगा कि तुम ये नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि ओके मुझे करना चाहिए। और मैंने शायद इसीलिए सारे के सारे प्रोफेशन को चूज किया, और मुझे लगता है कि अभी मेरी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है। अभी मुझे काफी सारे रिस्क कॉल लेने हैं और काफी सारी चीज। मैं यहाँ पे ये था कि एकेडमिक्स में आप आ गए हो, तो आपके पास ये था कि ओके आपको पीएचडी तक कर लेना है। नाउ आई डन माय पीएचडी, अब मैं डीएससी करने का सोच रही हूँ। उसके बाद एजुकेशन खत्म, अब इसके बाद हम कुछ अलग करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको रोज नया नया करना है। तो व्हाट वुड बी योर न्यू कैरियर? सोशल वर्क बेसिकली। अभी तो सोशल वर्क है कि आई वांट टू डू समथिंग कि मुझे ये लगे कि आई डन समथिंग फॉर द सोसाइटी। उस फीलिंग से अच्छी कोई नहीं है जब लोग आपको ये कहते हैं कि आपकी वजह से उनका बच्चा पढ़ रहा है। उससे फीलिंग कोई अच्छी नहीं। जब आप किसी के लिए कोई हेल्प करते हैं, तो उससे अच्छी कि हमारी जो घर का रोजगार है आपकी वजह से इतना चल गया है। हम एक टाइम पे थे, कुछ कमा नहीं पा रहे थे, आपने गाइड किया तो हम ऐसे हो गए। तो आई थिंक ये थोड़ी सी जो सेंसिटिविटी है ना, बहुत जरूरी होनी चाहिए कैरेक्टर के अंदर। कि आप रोड पे अगर किसी को देखें तो आप उसको, अगर कुछ नहीं कर सकते हैं, मुझे हमेशा से लगता है कि अगर आप किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते हो, बहुत बड़ा है आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो कम से कम उससे प्यार से बात करें, दिल ना दुखाइएगा। So any heart touching? ये छोटी चीज है। हाँ, ये बहुत छोटी चीज है, और वो भी हम करना शायद भूल गए हैं। कितने लोग होते हैं जो घर में अपने पेरेंट्स को थैंक यू कह देते हैं, या कितने लोग होते हैं जो अपने ड्राइवर को थैंक यू कहते हैं। हम लोग शायद ये भूल चुके हैं, और हम लोग ये, क्योंकि वो हमारे, अब एक आपको एग्जांपल बताती हूँ। कोरोना के टाइम पे आई थिंक लोगों के दिमाग में बहुत हो गया था कि कोरोना देखते ही होता है, तो लोग ना, जितने भी स्वीपर वगैरह थे, इनके साथ बहुत अलग सा बिहेवियर था। तो गर्मी का टाइम था, आई थिंक जब ये स्टार्ट हुआ था, बहुत ज्यादा गर्मी थी। तो जो स्वीपर था उसने पैरों में कुछ नहीं पहना होगा, मास्क भी नहीं था, एंड somebody was shouting कि तुम्हारी वजह से कोरोना फैल रहा है, ये हो रहा है। तो मैंने उनको कहा, एंड ही वाज वेरी बुजुर्ग काइंड ऑफ अ पर्सन, तो मैंने उनको कहा कि अंकल, आपकी मैं काफी रिस्पेक्ट करती हूँ, और अगर आप इसको एक मास्क देते और इसके पैरों में जूते देते ना, तो मुझे आपके लिए रिस्पेक्ट यहाँ तक हो जाती। तो कोई बात नहीं, आप नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, प्यार से तो बात करिए इन लोगों से, कोरोना देखने से नहीं फैलता है। तो ये जो चीज है ना, ये जो सेंसिटिविटी है, ये बहुत जरूरी है आपको अपने अंदर और अपने बच्चों के अंदर करना, क्योंकि कल को वो फिर आपको वृद्धाश्रम ही छोड़ के आएंगे, क्योंकि आपने उनको सेंसिटिविटी तो नहीं सिखाई ना। आपने उनको पैसे का महत्व सिखाया, बट ये नहीं सिखाया कि पैसे के अलावा इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये जो चीजें है ना, हम अपने बच्चों में नहीं करते हैं, हम उनको नहीं सिखाते कि सेंसिटिविटी इन अ कैरेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लोगों के लिए, पेट्स के लिए, जानवरों के लिए सेंसिटिव होना चाहिए, और जहाँ पे वो एक बार उनके दिल में आ गया ना, वो तुम्हारे साथ भी बुरा नहीं करेंगे। आप उनके साथ उनको ये चीजें इसलिए सिखा रहे हो क्योंकि आपका जो बुढ़ापा है वो सुधरे। मुझे लगता है हमेशा कि बहुत जरूरी है कि आप उनको ये समझाइए कि सेंसिटिविटी इन अ कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। I can go on and on. Yeah, the conversation, it's very clear you are a very soft-hearted and plus a Yeah, great. So it's मैं लोगों को दुखी देख के आगे बढ़ नहीं सकती, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है। तो कुछ नहीं होगा तो मैं पूछ लूंगी
क्या हो गया, प्रॉब्लम है तो मैं कोई बात नहीं, आई विल ट्राई टू डू इट. और ये आई थिंक हम सब में होना चाहिए. So true. Positive. So we will end the session here only because the conversation can go on and on and on. It's pleasure talking to you, and it was great knowing the Same. all social activity you are doing, and such a soft-hearted person you are. Thank you very much for your time. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you.